براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے آج پھر یہ موقع ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کے کلام میں سے، زندگی بخش کلام میں سے زندگی بخشنے والی باتوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ خداوند انسانوں تک اپنا کلام پہنچاتا، وہ ان سے بات چیت کرتا تھا۔ اور اگر آپ فرمان قرآن کو دیکھیں، فرمان بائبل کو دیکھیں تو باغ عدن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جس میں انسان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رفاقت کا ذکر ملتا ہے اور باہمی گفتگو کا ذکر ملتا ہے۔ خدا انسانوں تک واضح کلام پہنچاتا اور اس کلام میں اس کا جو مقصد وہ انسانوں تک کھول دیتا تھا۔ خدا کے ساتھ رفاقت، خدا کے ساتھ گفتگو، یہ بات ہمیں آغاز ہی سے نظر آتی ہے۔ اگر آپ فرمان قرآن کا مطالعہ کریں، جیسے میں نے پہلے کہا، فرمان بائبل کو پڑھیں، تو باغ عدن میں ہمیں یہ رابطہ نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ انبیاء اکرام کے وسیلہ سے چلتا رہا، اور یہ سلسلہ جو خدا کے کلام کرنے کا ہے یہ چلتا رہے گا۔ کیسے؟ اس بات کو آج تمام بنی نوع انسان کے لیے جاننا ضروری ہے، خاص طور پر جو 3 مذاہب الہامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خاص طور پر اہل اسلام، اہل مسیحت، اہل یہود، تینوں خود کو الہامی کہتے ہیں، مانتے ہیں، اور خاص طور پر بر صغیر میں زیادہ تعداد مسلمان اور مسیحوں کی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ خدا جو خالق خدا ہے، توریت جس کو فرمان قرآن میں امام کہا گیا ہے اور پھر نور اور ہدایت کہا گیا ہے، آپ یہ سورہ المائدہ، سورہ الانعام اور دیگر سورتوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو توریت میں لکھا ہے کہ خدا جو اپنے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے کہلاتا ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اگر آپ سورہ البقرہ اس کی 136ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ناموں کی لسٹ دی گئی ہے کہ خدا کلام کرتا تھا، اور کیسے وہ کلام کرتا رہے گا۔ وہ ذریعہ جس کے وسیلہ سے خدا ہمیشہ انسانوں تک اپنی بات، اپنا کلام، جس کو ہدایت، جس کو نور کہا گیا ہے، میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، ہدایت جب مذہبی معنوں میں استعمال ہوتی ہے تو اس سے مراد ہے آغاز سے لے کر اختتام تک، شروع سے لے کر منزل تک پہنچا دینے والی ہستی یا تعلیم۔ اور نور کی جب بات کی جاتی ہے تو نور قدیم زمانوں میں، قدیم تہذیبوں میں روشنی کو راہ دکھانے کے لیے جب اندھیرے میں لوگ چلتے تھے تو مشعل لیے ہوئے لوگ آگے آگے چلتے تھے، جن کو رہنما، راہ دکھانے والے کہا جاتا تھا۔ تو آج کی تاریک دنیا میں جب ہر طرف جہالت اور گناہوں کے اندھیرے ہیں، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، خدا کے احکام سے متصادم تعلیمات کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور پیروی بھی بڑھتی جا رہی ہے، ایسے حالات میں ضروری ہے کہ آج بھی خدا کی آواز کس طرح سے ہم تک پہنچتی ہے۔ دور حاضرہ کے ریسرچ اسکالر جناب محترم محمد علی مرزا
کے سامنے جب اس سوال کو رکھا گیا تو وہ ریسرچ اسکالر ہے تو انہوں نے مسیحی، یہودی اور اسلامی تعلیم کی روشنی میں جو بات کی کہ خدا کلام کرتا رہے گا، کس ہستی کے وسیلہ سے؟ آئیے یہ ایک کلپ ہے جو دیکھتے ہیں کہ کس ہستی کے وسیلہ سے، کون سا ذریعہ ہوگا کلام کا، اس کا نام کیا ہوگا اور وہ ہمیشہ تک کرتا رہے گا۔ آئیے سنتے اور دیکھتے ہیں اس کلپ میں ریسرچ اسکالر کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا اس میں جو موقف ہے وہ بڑا جو ہے وہ سخت ہے اس حوالے سے کہ میں اس ختم نبوت کو کسی ایک خاص مکتبہ فکر کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا تو سٹانس یہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے، یا وہ عقیدہ امامت کی یہ بگڑی ہوئی شکل مانے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایسی ہستیاں دنیا میں موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا یا کرتا رہے گا، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے، اس پہ تو اجماع امت ہے۔ مسئلہ نمبر میرا اس کے اوپر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام وہ ریکارڈڈ ہے۔ ریسرچ اسکالر محمد علی مرزا بہت بڑا بھید ہم پر کھول رہے ہیں، اس لیے خدا کے بھیدوں کی پہچان انسانوں کو وہ سمت جو خدا دکھانا چاہتا ہے دیکھنے کے قابل کرتی ہے۔ اور جب یہ باتیں آپ اگر مسلمان ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان باتوں پر غور کرنے کے لیے بیٹھ جائیے۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو بھی تھوڑے لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے، چند منٹوں کے لیے بیٹھ جائیے کہ کس کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا ہے۔ اگر آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہودی ہیں، آپ کئی بھگوانوں کو مانتے ہیں، کئی فلسفوں کو مانتے ہیں، اور آپ سننا چاہتے ہیں کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو خالق خدا ہے، اس کی آواز، اس کا کلام آج جب میں 2019 میں زندہ ہوں مجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے ریسرچ اسکالر محمد علی مرزا کی بات سنی کہ خدا کلام کرتا تھا اور کرتا رہے گا۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو عبرانیوں کا خط ہے، اس کے پہلے باب میں آپ کو جانا پڑے گا تاکہ آپ اس کی تفصیل سے واقف ہو سکیں گے ہے کیا۔ یہاں پر عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے پہلی آیت سے ہی، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ ان آیات میں بہت بڑا بھید ہے، لیکن وہ بھید کھل جاتا ہے۔ ریسرچ اسکالر کہہ رہے ہیں کہ خدا کلام کرتا تھا اور اس ہستی یسوع مسیح کے وسیلہ سے کرتا رہے گا۔ ہم بیٹا جب کہتے ہیں تو بیٹے کے لیے آپ یاد رکھیے، ہم جنسی ملاپ سے بیٹے کی تعلیم کو نہیں مانتے کہ خدا کی کوئی بیوی ہے، خدا معاف کرے، ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ رومیو کا خط پہلا باب اور اس کی پہلی 3-4 آیات آپ دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے وہ قدرت کے وسیلہ سے، گو وہ ابن داؤد بھی کہلاتا ہے، داؤد کی نسل سے کہلاتا ہے، لیکن قدرت اور اختیار جو اس کے پاس ہے، اس سبب سے اس میں وہ صفات ہیں جو الہی ہیں، اس لیے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور ریسرچ اسکالر یہ کہہ رہے ہیں آپ اگر بیٹا نہیں بھی مانتے تو آپ کو خدا کی آواز اگر سننی ہے،
اگر آپ ان کو نبی مانتے ہیں, اگر آپ کو خدا کی آواز سننی ہے, کلام کرتا رہے گا. یہ اسلامی تعلیم ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں اور مسیحی بھی جو ہیں خدا کلام کرتا رہے گا. حضور المسیح نے, خداوند یسوع المسیح نے فرمایا تھا یوحنا کی انجیل 14-16 میں کہ روح القدس تمہیں سکھائے گا, وہ میری تعلیم, میری باتیں تمہیں یاد دلائے گا. تو یہاں پر اس طرف نہیں جانا چاہتا. جو وسیلہ ہے یسوع مسیح ہیں, اور وہ مددگار کے وسیلہ سے مسیحوں کے لیے کلام کرتے ہیں. اور آج بھی یسوع مسیح لکھا ہے طرح بطرح, حصہ بحصہ. اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء اکرام کو بھیجا گیا تاکہ پیغام خدا انسانوں تک پہنچے, اور آخر میں بیٹے کے وسیلہ سے لکھا ہے بیٹے کی معرفت کلام کیا. سورہ مریم, سورہ الانعام اور دیگر اگر سورتوں میں دیکھیں تو لکھا ہے یسوع مسیح کلمت اللہ, خدا کا کلمہ, خدا کا کلام. یوحنا کی انجیل پہلا باب, اور کلام مجسم ہوا کلمہ. سورہ مریم, سورہ الانعام 171, دیگر آیات بھی بہت سی ہیں. کلام مجسم ہوا, وہ بھیجا گیا مقدسہ مریم کے پاس. اور سورہ آل عمران 50 اور 51 میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کی تعلیم سیدھی راہ. اور اگر آج بھی دنیا مختلف راہوں پر بھٹک چکی ہے, ان کو خدا کی آواز سنائی نہیں دے رہی, کس سمت ہمیں اس دور میں جانا ہے, تو ایک آواز محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں, ایک ہی ہستی ہیں جن کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا رہے گا. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اس نے آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کیا, اور وہ کلام یروشلم کی گلیوں میں, ناصرت میں, یروشلم کے چوگرد, یہودیہ میں, سامریا میں, دیگر جگہوں پر وہ کلام انسانوں تک پہنچا. خدا کی آواز انسانوں تک پہنچی, اور جتنوں نے اس آواز کو سن کر خدا کے رنگ میں رنگنے کے لیے, اس تعلیم کے مطابق ڈھلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ بن گئے. اور آج بھی یہی خدا کلام کرتا رہے گا. اب یسوع مسیح جب انہوں نے اس زمین پر اپنی خدمت پوری کی, تو اس کے بعد کس طرح سے وہ انسانوں کے ساتھ کلام کرتے رہے. اب کیسے یہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح, محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں کلام کرتے رہیں گے, اور انہوں نے خود تعلیم دی یوحنا کی انجیل 14-16 کے ان کی باتیں پہنچتی رہیں گی روح القدس کے وسیلہ سے, کلام پہنچتا رہے گا, رہنمائی پہنچتی رہے گی. لیکن یسوع مسیح خود کس طرح سے لوگوں تک آتے اور ان کی رہنمائی کرتے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے, آئیے اس کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں. کچھ مثالیں ہیں, تقریباً 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ اناجیل میں سے ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں. تو پہلے میں جو حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایک شاگرد ہیں, ان کا نام ہے یوحنا, ان کے ساتھ کس طرح سے وہ کلام کرتے ہیں. تو یہ آپ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں اگر چلے جائیں تو 9ویں آیت سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں پر لکھا ہے, میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں, خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی نسبت گواہی کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاگرد ہیں, یسوع مسیح پر ایمان اور یسوع کی گواہی دینے کے سبب سے قید میں ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ بہت سے مسیحی اس وقت بھی قید میں ہیں. میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ یسوع مسیح آپ کی حالت سے واقف ہے. یہاں پر لگتا ایسے ہے کہ یوحنا شاگرد کچھ مایوس اور نا امید تھا شاید, اور وہ کہتا ہے گواہی کے سبب سے ایسے جزیرے پر تھا جو نون ورلڈ تھا, جو دنیا تھی, جو جہاں انسانوں کے بڑے بڑے شہر تھے. یہ جزیرہ بہت دور جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہیں, لوگ اکیلے رہتے تھے, اور اکیلے پن کا احساس شاید اس شخص کو بہت زیادہ تھا. اور وہ یہ لکھتا ہے کہ
खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे किसी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है इसको किताब में लिख के सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और सुमरना और पुरगमन और थवाथीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया में। यहां पर वो कह रहा है कि वो खुदा के रूह की हदायत से ये पैगाम उस तक पहुंच रहा है। आगे देखिए 12वीं आयत में, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा। अब गौर कीजिए, आवाज है और वो उस तरफ देखने लगा, जिसने मुझसे कहा और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। जब उसने निगाह की तो 7 चिरागदान उसको नजर आए और लिखा है, उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। आदमजाद, इब्ने आदम यीशु मसीह का टाइटल है, एक आदमजाद देखा। और फिर आगे वो लिखते हैं, उसका सर और बाल सफ़ेद और बल्कि बर्फ की माने सफ़ेद थे और उसकी आंखें आग के, ये तशबीही जुबान है, शोला की मानंद थी और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया और उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार कलाम को भी कहा गया है और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। यीशु मसीह को आफताब सदाकत भी कहा गया है। मलाकी की किताब में सूरज, सच्चाई का सूरज कहा गया और यहाँ पर हम फिर वही तशबीह देखते हैं। और आगे लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने यह कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। ये खुदा का टाइटल है, अव्वल और आखिर। अब इस तरफ मैं जाना नहीं चाहता, काफ़ी अलूयत पर प्रोग्राम्स हमारे वेबसाइट पर, टीवी पर चलते हैं, आप देखते रहिए। मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। अगली बात सुनिए, मैं मर गया था और देख अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं, एक ही हस्ती है जो जिसके वसीला से खुदा कलाम करता रहेगा। और यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। और फिर वो आगे यूहन्ना लिखता है, पास जो बातें मैंने देखी जो हैं और जो उसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, उसने कहा। और आगे, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे हाथ में देखा था और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और 7 चिराग दान कलीसियाएं हैं। अब यहाँ पर जो मैं बात आपके सामने जल्दी से रखना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह इस शख्स के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, जिंदगी, मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं, मेरा इख्तियार है। मत्ती की अंजील 28 बाब में आप फरमाते हैं, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये कैद खाने हैं या आप अकेले हैं या मायूसी ने आप पर हमला कर रखा है, यीशु मसीह उसके पास पहुंचे ताकि उसका हौसला बढ़ जाए कि मैं इख्तियारे कुल रखता हूं। ये कुव्वतें जो तुम्हें वक्ती तौर पर कैद में डाले हुए हैं, इनका तुम मेरी बादशाहत का हिस्सा हो, इनका तुम पर कोई इख्तियार नहीं है। और यीशु मसीह उसको बताते हैं कि फिर आने वाले वक्त में मुकाशफा की किताब अगर आप पढ़ें तो क्या क्या होगा, वो बातें भी उस पर खोल देते हैं। और शागिर्दों में सिर्फ ये वाहिद शागिर्द है जो तबाही मौत मरा है। और यहां पर हम देखते हैं एक और नुक्ता, 7 चिराग और 7 कलीसियाएं। अब उसको ये समझ नहीं, ये तशबीही जुबान है। और यीशु मसीह कहते हैं ये जो चिराग हैं, चिरागदान है 7, ये कलीसियाएं हैं। और फिर कलीसिया के चरवाहों की बात की गई, पासबानों की बात। तो यीशु मसीह बातों को खोल भी देते हैं। अब जितनी तशबीह है, इससे मुराद खुदा का जलाल, खुदा का इख्तियार
यीशु मसीह बतौर हुक्मरान मुकाशफा की किताब में, बतौर नजात दहिंदा मुकाशफा की किताब में, और खुदा के कलाम करने का मकसद इंसानों को नजात तक लाना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह इस शख्स के पास जा पहुंचे और ना फक्त उसे हौसला दिया, तकवीयत दी, बल्कि जो बातें उसकी समझ से बाला थीं वो भी उसको समझा दी। और इस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि मुकाशफा की किताब आज हमारे पास है। तो खुदा यीशु मसीह, हम खुदामंद मानते हैं मसीही, अगर आप नबी मानते हैं ठीक है आप मानिए, लेकिन कलाम करता रहेगा। कौन? खुदा। कलमा, खुदा का कलमा, खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ, इंसान बना और उसके वसीला से कलाम करता रहेगा। ये एक शागिर्द जिसके पास यीशु मसीह, उन्होंने कहा मैं मर गया था, सलीब पर जान दी थी, अब जिंदा हूं, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा मैं अब्दल आबाद जिंदा रहूंगा। और रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्जा ये कह रहे हैं एक ही हस्ती है, मुसलमान हैं आप, मसीही हैं आप, यहूदी हैं आप, हिंदू हैं आप, लादीन हैं आप। अगर आप खुदा की आवाज सुनना और उससे रहनुमाई पाना और नजात और हमेशा की जिंदगी में जाना चाहते हैं, वो खुदा जो खालिक है कलाम करता रहेगा। और यीशु मसीह अपने इस शागिर्द से मुलाकात करते हैं। एक और शख्स से यीशु मसीह कलाम करते हैं, मुलाकात करते हैं। अब उसका अहवाल हमें अमाल की किताब में मिलता है। और अगर आप अमाल की किताब में चलें तो आप देखेंगे यहाँ पर अमाल की किताब में एक शख्स है जिसका नाम है सौल। उससे ईसा मसीह, यीशु मसीह किस तरह से कलाम करते हैं अमाल की किताब में देखते हैं। और सौल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, खा मर्द हों खा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। तो इसका इरादा ये देखिए, ये मसीहों के खिलाफ नफरत में इस कदर भरा हुआ शख्स है और आज भी शायद कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं। अब ये हुक्मरानों से इजाजत ले रहा है कानूनी तौर पर कि वो जाए और जिनको मसीह की पैरवी करते हुए पाएगा माफ कीजिएगा, उनको बांधकर यरूशलेम में लाए। ये उसका मंसूबा है। तो आइए देखते हैं फिर इस शख्स के साथ क्या होता है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हुए हैं। अब यहां पर आगे लिखा है अमाल की किताब में, जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ए सौल तू मुझे क्यों सताता है। आवाज सुनी। मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे हैं एक ही हस्ती हैं जिनके वसीला से खुदा कलाम करता रहेगा। यहां पर पालूस, ये सौल शख्स है, बाद में इसका नाम पालूस हो गया। ये आवाज सुनी कि ए सौल तू मुझे क्यों सताता है। अब उसने पूछा ए खुदामंद तू कौन है। ए खुदामंद तू कौन है। यीशु के वसीला से, ईसा मसीह के वसीला से खुदा कलाम करता रहेगा। ये कलाम कैसे होता है? यूहन्ना के साथ अभी हमने देखा कलाम हुआ। अब हम देख रहे हैं ये शख्स है सौल, इसके साथ कलाम हो रहा है। तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और फिर आगे क्या कहा? मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना है, करना चाहिए, वो तुझसे कहा जाएगा। जो तू कर रहा है वो खुदा की मर्जी नहीं, तू खुदा के नाम पे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो कुछ तुझे करना है अब तुझे कहा जाएगा। इस शख्स की जिंदगी का रुख तब्दील हो गया और उसने कहा मैं यीशु हूं। यीशु मसीह ने कलाम किया। ये शख्स जो मसीहों की मुखालफत में ईमान, वो अंधे ईमान के जोश में वो काम जो खुदा नहीं चाहता वो करने की कोशिश कर रहा था,
लिखा हुआ है कलाम खुदा में, रहम करो तुम पर भी रहम किया जाएगा। अब पढ़ता तो था लेकिन अंधा ईमान, अंधा जज्बा, रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा। खुदा नहायत मेहरबान और रहीम है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं जो भी इस राह पर चलते हैं उनको पकड़ूं, घसीटूं और शहर में लाऊं। और जब आप फरमाने कुरान पढ़ते तो लिखा है सूरह अल बकरा में, मजहब में, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, पढ़ना और बात और अमाल से निकलता क्या है वो और बात। और ये शख्स इसी कशमकश में था, वो समझता था कि वो ठीक सम्मत जा रहा है, वो दीन की खिदमत कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह उस तक पहुंचे और उससे कहा तू मुझे क्यों सताता है। और ये शख्स पुकार उठा, तू कौन है? मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं खुदा कलाम करता रहेगा। अगर आज भी आप मजहबी उलझन में, अकायद के उलझाव में उलझे हुए हैं, तो एक उम्मीद, मैं खुदा का खादिम होता हुआ आपसे दरख्वास्त और मिन्नत कर रहा हूं, खुदा कलाम करता रहेगा। क्या आप आज पालू साउल की तरह हैं, या आप उसकी आवाज को सुनकर वो करने वाले बन सकते हैं जो खुदा की बादशाहत में, खुदा की रास्तबाजी में, खुदा की आवाज सुनकर खुदा के अहकाम की पैरवी करने वाले बन जाएंगे। और एक और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जब यीशु मसीह, एक और वाकया, जब वो दो और शागिर्दों से मुलाकात करते हैं, और ये आपको लूका की अंजील के आखिरी अबवाब में मिल जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो शागिर्द हैं जो यीशु मसीह की मौत के बाद अफसुर्दा हैं, उनको बातें समझ नहीं, गमगीन हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर फिर क्या होता है। यहाँ पर लिखा, देखो उसी दिन उनमें से दो आदमी, 24 बाब में आप देख सकते हैं, गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस था। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है, और वो उन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। अब याद रखिए, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बहुत से लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, वाकयात को अपने तज्जिया करके अपनी अकल से समझने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर आगे लिखा है, जब वो बातचीत और पूछ-पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? आज मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों से, मसीहों से, दीगर लोगों से आपस में बातचीत बहुत ज्यादा चल रही है। बहुत से लोग बातचीत करते हैं, ये अच्छी बात है, और उससे वो अपने नताइज निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वाकया में हम देखते हैं कि इसका एक और पहलू भी है। ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बातचीत में एक और हस्ती शरीक हो गई है। आज मुसलमानों की महफिलें हों, मसीहों की महफिलें हों, दीगर मज़ाहब की महफिलें हों, यीशु मसीह बातचीत में आकर शरीक होते हैं। और फिर क्या होता है, ये आगे हम देखते हैं। वो गमगीन से खड़े हो गए। गम, जब बातें समझ नहीं आती तो फिर गम पैदा होता है, और गम से नाउमीदी, मायूसी पैदा होती है। और मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं खुदा कलाम करता रहेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, इन बातचीत करने वालों के दरमियान जो गम में हैं उनके दरमियान साथ हो लिया है। और यहां पर हम देखते हैं, फिर एक ने जिसका नाम कुलुपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। फिर यहां पर नबी कहा गया है, सो कलाम करता रहेगा। इनका ईमान है वो नबी था। अगर आप नबी भी मानते हैं, खुदा की आवाज किस वसीला से पहुंचती है ये जानना जरूरी है। मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे हैं एक ही हस्ती, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु उनके साथ आ गया। और फिर आगे लिखा, और सरदार काहिनों
اور حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا، لیکن ہم کو یہ امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا۔ اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی جو ہم کو حیران کر دیا، جو سویرے ہی قبر پر گئی تھیں اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا وہ زندہ ہے، یسوع مسیح زندہ ہے اور زندہ عبدالعباد زندہ رہوں گا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح ان کے ساتھ موجود ہوئے، اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے بھی قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ اس نے ان سے کہا، غور کیجئے، یسوع جب کہتا ہے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آئیے، اس نے ان سے کہا، اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست اعتقادو، انبیاء کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں دیکھیے یسوع مسیح کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ یہ شاگرد ہیں، حواری ہیں، صحابہ ہیں، لیکن یسوع ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الفاظ پر غور کیجئے، اے نادانو، تم سمجھتے نہیں ہو، نادان ہو، سب نبیوں کی باتوں کو ماننے میں سست اعتقاد ہو۔ تمہارا اعتقاد تو ہے لیکن اس میں سستی ہے، وہ مکمل سمجھ نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ یسایہ 53 اور دیگر جو ان کی موت سے متعلقہ انبیاء اکرام نے پیشن گوئیاں کی تھی، یہ جو یہودی تھے، تو ان سے کہا کہ تم پڑھو تو صحیح تاکہ تم اس بات کو سمجھ سکو جو یسوع مسیح کے تعلق سے کہی گئی۔ آج محمد علی مرزا یہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کلام کے وسیلہ سے آسمان کلام کرتا رہے گا، تو کتنے لوگ ہیں جو ان باتوں کو سمجھنے میں آج بھی سست اعتقاد ہیں؟ یا یسوع مسیح ان سے کہیں گے، اے نادانو، تم یہ باتیں سنتے تو ہو لیکن ان باتوں کی کھوج لگانے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، مکمل طور سے آشنائی کے لیے تم میری طرف آنا نہیں چاہتے؟ غور تو کرو۔ اور آگے دیکھیے خداوند کیا کرتے ہیں۔ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھا دیں۔ یسوع مسیح الجھاؤ کو دور کرتا ہے، سب باتیں ان کو سمجھا دیں۔ یسوع مسیح کے کلام کرنے کا مقصد بھیدوں کا کھل جانا، جو چیزیں مبہم ہیں ان کا صاف ہو جانا۔ کیسے؟ جب یسوع مسیح کلام کرتا ہے، آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں ایسے جو یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے ان شاگردوں کی طرح تعلیم سے تو واقف لیکن مکمل نہیں۔ تو یسوع مسیح آئے اور انہوں نے تمام باتوں کو جو ان کے تعلق سے لکھی ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ توریت، انجیل، زبوروں میں آپ ان کو نبی مانتے ہیں یا آپ خداوند مانتے ہیں، آپ جانیے تو صحیح تاکہ آپ کے ساتھ بھی وہ کلام کر سکیں۔ آج یہ کلام کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے انسانوں تک، یہ تو ہم نے جو ہمارے پاس مذہبی تاریخ ہے اس سے ہم نے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آج بھی انسانوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ اگر آج کرتے ہیں تو کس طرح سے خداوند کلام کرتے ہیں؟ میرے ساتھ ہیں پاسٹر وکرم سنگھ کروچیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت بڑھیا۔ پاسٹر صاحب، یسوع مسیح کے تعلق سے ابھی ہم نے جو ہمارے پاس مسیحی تاریخ ہے اور مسلمان بہن بھائی جو ہمارے فرمان قرآن کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، ان سے بھی ان کے سامنے بات رکھی کہ یسوع مسیح وہ ہیں جو کلام کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ بھی انہوں نے کلام کیا تھا، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا جنم کہاں ہوا، آپ کا جو بچپن تھا، پریوار تھا، کہاں آپ پیدا ہوئے؟ چونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ وہ صرف یہودیوں کے لیے ہی آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیے اپنے بچپن کے تعلق سے بھی۔
सबसे पहले धन्यवाद हो प्रभु का और जिंदगी टीवी का और डॉक्टर दानियल जी का, जिन्होंने द्वारा मैं अपने जीवन की गवाही पेश कर रहा हूं। तो मैं बताना चाहता था कि मैं एक हिंदू परिवार से नाता रखता हूं और मेरे जो पिताजी थे वो काफी जादू तंत्र मंत्र के बहुत ज्यादा थे। वो बहुत ज्यादा करते थे बातचीत देवी देवताओं के साथ, देवी देवताओं के मंदिरों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, और बहुत ही ज्यादा वो जिसे बोलते हैं कि जादू टूना करते थे। जी, बहुत शुक्रिया आपने ये बताया। तो वो जादू के ज़रिया से देवी देवताओं से बातचीत करते थे। जी बिल्कुल, जी तो बिल्कुल। थोड़ा सा बताइए ये किस तरह से वो बात करते थे और वो किस तरह से होता था, थोड़ा सा बताइएगा ये भी, अगर ऐसे ही आपको होता कुछ था या... कि जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फादर साहब क्या करते थे कि रात के तकरीबन 11-12 बजे उठकर बैठ जाना उन्होंने। उसके बाद कुछ जादू मंत्र तंत्र पढ़ने शुरू करने, और उसके बाद क्या करना उन्होंने, सुबह जब उठना है तो वो कभी कभी मतलब ऐसे बैठ जाते थे और कब्रिस्तान में भी जाते थे। कब्रिस्तान में जाना उन्होंने, वहां पर भी तंत्र मंत्र करना। और जब कोई त्योहार आ जाता था जैसे कि दीपावली या कुछ और आ जाता था, तो वो कभी कभी बकरों की बलियां भी दिया करते थे, मुर्गों की बलियां दी करनी उन्होंने। लेकिन शांति नाम की कोई चीज तब भी प्राप्त नहीं हो रही थी। ये बहुत शुक्रिया आपने ये बात बताई कि शांति नहीं थी। तो ये जो सारे जी देवी देवताओं से भी बात करते थे, जादू टोना भी करते थे, जी जी। और इसका मकसद क्या होता था ये थोड़ा सा बताइए। क्या वो मकसद कभी पूरा भी हुआ, ये बताइए थोड़ा सा मुख्तसर तौर से। जी बिल्कुल जी, एक्चुअली ये ऐसे होता था कि कभी कभी परेशानी आती थी, जैसे कि आज बहुत से लोग हैं फाइनेंशियली परेशान हो जाते हैं, घर में कलेश वगैरह रहता था, तो उनके लिए भी कुछ लोग इधर उधर भागते हैं। तो सेम ही इसी तरह मेरे फादर साहब भी थे। जब घर में कलेश होना, पैसे की कमी नहीं आना, कमी आ जाती थी, तो वो देवी देवताओं की सहायता मांगते थे कि हमारे घर में शांति नहीं है, क्लेश हो रही है, पैसे की कमी आ रही है, बीमारियां आ रही है, तो हमें उनसे राहत मिल जाए। लेकिन ना तो कभी घर में क्लेश कभी खत्म हो रही थी, ना ही पैसे की कोई कमी पूरी हो रही थी, और ना ही कोई ज्यादा जिंदगी में कोई और बढ़ोतरी हो पा रही थी। बहुत शुक्रिया आपने ये बात की। बहुत से मेरे नाजरीन जो इस शो को देखते हैं, आप देख और सुन रहे हैं कि जादू टोना, देवी देवताओं से बातचीत और राबता, और वो बता रहे हैं जो ख़ानदान में थे कि कभी भी वो नहीं मिला जिसके लिए ये राबते किए गए। उसके बाद बकरों की और दीगर जानवरों की कुर्बानियाँ भी चढ़ाई गईं, लेकिन जो जवाब आसमान से आता है, ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जो उन मुश्किलात को हल कर सके जिनमें वो इन तमाम बातों को करते थे। अब पास्टर साहब, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप ये बताइए कि आप ऐसी ज़िंदगी में थे, तो फिर यीशु मसीह किस तरह से, मुसलमान बहन भाई उनको ईसा मसीह कहते हैं, और उनके जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो कहते हैं खुदा उनके वसीला से हमेशा इंसानों से कलाम करता रहेगा। तो आपके साथ ये बताइए कि यीशु मसीह ने किस तरह से कलाम किया, क्या हालात थे जिन हालात में से आप गुजर रहे थे, और फिर वो कलाम उन्होंने आपके साथ किया, ये अब हमारे नाजरीन को बताइए। बिल्कुल जी, मेरे जीवन की जो गवाही है वो बहुत बड़ी है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले समय में जब मेरे हालात ऐसे थे कि लोगों ने और डॉक्टरों ने और मेरे आस पड़ोस के सभी लोगों ने बोल दिया था कि अब तुम मर जाओगे। उसका कारण क्या था कि मेरी दोनों जो किडनी थी वो डैमेज हो चुकी थी। तो मेरे पास उनकी रिपोर्ट भी अब तक पड़ी है। तो क्या था कि डॉक्टर ने बोल दिया कि एक क्रेटनाइन होता है जो कि किडनी की इंफेक्शन जिससे बोलती है। तो मेरा जो क्रेटनाइन था वो
18 سے 19% ہو چکا تھا. نارمل ڈگری پہ کیا ہوتا ہے کہ 2% ہوتا ہے اور میرا تھا 18 سے 19%. تو ایسے تھا کہ میں نے جب مطلب بھی میرے بیک میں پین ہوتی تھی تو میرے کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا یہ پین کس لیے ہو رہی ہے. تو اچانک ایک میرا دوست، میرا بھائی جو مسیحت میں چلتا تھا میرے پاس آیا اور بولا کہ بھائی جان آپ کیسے بڑے ہو؟ تو میں نے ان کو بولا کہ میرے درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، لیکن میرے کو پتہ نہیں چل رہا یہ کیسے ہو رہا ہے. تو تبھی انہوں نے بولا کہ آپ ایسے کرو، سب سے پہلے چیک اپ کرواؤ، پہلے چیک اپ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے. تو میں نے بڑی مشکل سے اس کی گاڑی کے بائک پہ بیٹھا میں اور میرے کو لے کر گئے. جب میں نے لیبارٹری میں گیا، چیک اپ کروایا تو ایک دم سے لیبارٹری کا ڈاکٹر وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا کہ آپ جس کنڈیشن میں چیک اپ کروانے آئے ہو آپ کی 19% کریٹنائن ہے جو کہ نارمل طور پہ 2% ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک والی بات ہے. تو آپ ایسے کرو، اپنے ڈائلسس کرواؤ اور بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں جاؤ. تو میرا سارا پریوار جو کہ مالی حالت بہت پہلے سے خراب چل رہی تھی، پہلے سے شانتی نہیں تھی، پریشانیاں تھیں. تو میری ممی یہ سب پریشان، بولے کہ اتنا پیسہ نہیں ہے اب کیسے ہو پائے گا. تو اسی درمیان میرے کو ایک بڑے ہاسپٹل میں کیسے نہ کیسے کر کے لے گئے. ڈاکٹر نے بولا کہ پہلا ان کا ڈائلسس ہوگا، کچھ لیول نیچے آئے گا، اس کے بعد مطلب دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا. تو میں رو رہا تھا، میرے 2 بچے تھے، بیٹی تھی، بیٹا تھا، میری وائف تھی، سبھی میرے آس پاس سوچ رہے تھے، رو رہے تھے کہ ڈائلسس جس کا ہو جاتا ہے وہ بندہ کبھی بھی بچ نہیں پاتا. تو جیسے نہ تیسے کر کے ایک ڈائلسس ہوا اور ایک پادری، ایک پاسٹر جی میرے پاس آئے، انہوں نے دعا کی، بولے کہ آپ کا پربھو بچا سکتا ہے. میں نے بولا اگر بچا سکتا ہے تو میں رو پڑا اور میں نے ایک بات پوچھی کہ پربھو اگر تو ہے تو میں ایک بات بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں زندہ بچوں گا یا مر جاؤں گا. تو اندر سے میرے کو ایک آواز آئی کہ میں تیرے کو مرنے نہیں دوں گا. بس اسی بات کے اندر میرے اندر اتنا دृڑھ وشواس ہوا اور میں نے دوسرے دن ڈاکٹر سے بولا کہ ڈاکٹر صاحب میں ڈائلسس نہیں کرواؤں گا، میں چھٹی لینا چاہتا ہوں. یہیں پر میں آپ کو روکوں گا پاسٹر صاحب. جی آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر تو پربھو ہے تو مجھے جی بتا کہ میں مروں گا یا بچ جاؤں گا. چونکہ جی یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، زندگی اور موت کا اختیار اور علم یس آمین صرف خدا کی ذات کو ہے، یا آمین وہ جن کو اپنے فضل سے یہ آگاہی بخشتا ہے. تو جب آپ نے کہا کہ اگر تو پربھو ہے تو آپ نے یسوع کے بارے سنا اور آپ نے یسوع سے یہ کہا، یہی بات ہے کیا؟ یہ بالکل بالکل صحیح ہے، ایسے ہی. تو پھر آپ کے اندر سے یہ آواز آئی، کیا آواز آئی دوبارہ بتائیے. جو میرے بہن بھائی خداوند یسوع مسیح کو خداوند مانتے ہیں وہ بھی سنیں، اور جو ان کو نبی عیسیٰ مسیح مانتے ہیں وہ بھی سنیں کہ محمد علی مرزا یہ کہتے ہیں کہ خدا اس ہستی کے وسیلہ سے کلام کرتا رہے گا. اب یہ پوچھا انہوں نے کہ موت ہے یا زندگی ہے، تو یسوع مسیح نے کیا آپ سے کہا؟ پھر بتائیے یہ بات. میں جب لاسٹ اسٹیج پہ تھا تو ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ آپ ختم ہو جاؤ گے کیونکہ آپ کا ایک ڈائلسس ہو چکا. اس ڈائلسس کی وجہ سے میں ایک پاؤں بھی نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ جب ڈائلسس کا سمے تھا تو میرے کم سے کم 8 نیڈل ایک طرف اور 8 نیڈل ایک طرف تھے لگے، اور وہ بھی نیڈل صحیح نہیں لگ پا رہے تھے. اور میں نے موت کا منظر دیکھا تھا کہ موت کسے بولتے ہیں. تو جب میرے کو دوبارہ بیڈ پر لایا گیا تو انہوں نے ڈاکٹر نے بولا کہ دوسرے دن آپ کا کریٹنائن کچھ کما ہوا ہے اور لیکن دوسرا کرنا پڑے گا. تو میں نے پاسٹر جی کی بات کو یاد کیا اور پربھو سے بولا کہ اگر تو زندہ خدا ہے، اگر تو نے اتنے اتنے بڑے کام کیے ہیں تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں زندہ بچوں گا یا نہیں؟ تو میرے اندر سے آواز آئی تجھے مرنے نہیں دوں گا. یہیں پر رکیے گا.
मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैंने आपके सामने मुकाशफा की किताब में से रखा जहां पर यीशु मसीह ये कहते हैं, मैं मर गया था, जिंदा हूं और अबदल आबाद जिंदा रहूंगा। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से जिंदगी पाओ। उन्होंने कहा, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, उसे लेने का भी इख्तियार है। और वो जब लाजर की कब्र पर गए तो उन्होंने लाजर से कहा कि निकला और मुर्दा जिंदा हो गया। यही यीशु मसीह, मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं, खुदा कलाम करता था और कलाम करता रहेगा, और उसके कलाम में यीशु मसीह में जिंदगी थी, जिंदगी है और जिंदगी रहेगी। और आप देख और सुन रहे हैं, ईसा मसीह, यीशु मसीह ने कलाम किया। पास्टर साहब खुद आपको बता रहे हैं, यही यीशु मसीह, मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं, जिंदा है। और किसी वक्त मैं अपनी गवाही भी आप तमाम नाजरीन के सामने शेयर करूंगा कि किस तरह काफ़ी दफ़ा मुझे उन्होंने मौत से बचाया। इसलिए मैं आज पूरी दिलेरी के साथ, पूरी ज़मानत के साथ यहोवा खुदा का खादिम होता हुआ, यीशु मसीह पाक रूहुल कुद्स का खादिम होता हुआ आपको ये खुशखबरी दे रहा। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा ने इंसानों को तन्हा नहीं छोड़ा, खुदा ने इंसानों को नाउमीदी और मायूसी की हालत में नहीं छोड़ा। अगरचे गुनाह की तबाहकारियों ने आपकी जिंदगियों का सुकून उजाड़ दिया है, अगरचे अबलीस और गुनाह ने मिलकर आपके बदन पर अटैक किए हैं, एक राह, एक हल, एक तरीका, आसमानी उम्मीद, जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। मैं उसका खादिम होता हुआ आपके हौसलों को बढ़ाना चाहता हूं। मैं उसका खादिम होता हुआ आपको बताना चाहता हूं कि खुदारा एक दफा यह शख्स मौत के बिस्तर पर है और उसने पुकारा कि ए यीशु मसीह, ए प्रभु, ए खुदा, मुझे बता। और अमाउस की राह पर शागिर्द समझ नहीं पा रहे थे, यीशु मसीह ने उनको समझा दिया। और ये शख्स उनसे पूछता है, क्या मैं जिंदा रहूंगा या नहीं? तो जो जिंदगी दे सकता है उसने क्या कहा? पास्टर साहब दोबारा बताइए जरा, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। एक डायलिसिस हो गए जी, कीजिए बात जी। और मेरे अंदर से एकदम, मेरे को नहीं पता, एक पॉजिटिविटी आई, एक पॉजिटिव पन आ गया। और मैंने सिर्फ अपनी मम्मा से एक ही बात बोली कि मम्मा, अब डॉक्टर साहब को बोलो कि मैंने यहाँ पे नहीं रुकना, आप छुट्टी ले लो। और डॉक्टर साहब बोले, नहीं, आपका बेटा जवान है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मर जाएगा, आप लिख कर ले लो। और मैं उनको बोल रहा हूं कि नहीं, मेरे को बस एक आवाज आई है और उस आवाज पे मेरा ध्यान बार बार जा रहा है कि बस छुट्टी ले लो। डॉक्टर चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे मेरा क्रेट-9 है, वो चाहे 10% है, चाहे अभी 12% है, जितना भी है, मैं डायलिसिस नहीं करवाऊंगा। मैं बस छुट्टी लेकर अब घर लेना चाहता हूं, मैं घर जाना चाहता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। तो बस उसी, अब यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम लिख के दे देते हैं कि आपका बच्चा मर जाएगा। नहीं जी, बिल्कुल, डॉक्टर्स ने कहा कि हम लिख कर देते हैं आपका बच्चा मर जाएगा। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं तुझे जिंदा रखूंगा। मुझे आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले एक डॉक्टर ने कहा था, मेरे साथ मेरे एक पास्टर दोस्त भी थे। तो मैं यहाँ पर इस बात को आज आप तमाम दुनिया के लोगों के सामने, मसीही हों, गैर मसीही हों, यहूदी हों, कोई भी हों, रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह कलाम करता रहेगा। मेरे साथ पास्टर्स थे, मेरे दोस्त भी, और डॉक्टर ने कहा कि ये शख्स जो मैं आपके सामने हूँ आज, 2 या 3 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा।
डॉक्टर ने कहा, भी आपने सुना डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम लिख कर दे देते हैं कि ये शख्स मर जाएगा, और मैं आपके सामने हूं, वो आपके सामने है, ये यीशु मसीह खुदा के बेटे के जलाल के लिए, जो मुर्दों में से जी उठा है, जो आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जिसने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि ये शख्स 2-3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन यीशु मसीह ने, जैसे पास्टर साहब के अंदर ये आवाज आई, यीशु ने मुझे कहा था, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और मैं आपके सामने हूं और जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा खुदावंद के फजल से, चूंकि अभी बहुत काम करना है। और मैं आज, अगर आप मौत के हाथों में हैं, आप जिंदगी के आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं, अगर डॉक्टर्स ने आपको यह कह दिया है कि हम लिख कर दे देते हैं, मैं आज खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्स का खादिम होता हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आवाज जो आसमान से जिंदगी बख्श आवाज यीशु मसीह नासरी है, उसने मुझे कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और मैं आपके सामने आज खड़ा हुआ उसके कलाम की बातों को आपके सामने पेश कर रहा हूं, चूंकि वो जिंदगी मुझ में है। वो डॉक्टर शायद मर गया हो, लेकिन मैं जिंदा हूं और रहूंगा जब तक जमीन पर उसने मुझसे अपना काम लेना है। और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु मसीह का कलाम मेरे अंदर आया, और पास्टर साहब को क्या कलाम यीशु मसीह ने दिया कि तू जिंदा रहेगा। आज गुनाह की हालत है, अबलीस का कब्जा है, बीमारियां हैं, मुखालफतें हैं, नफरतें हैं, किसी भी तरह से आप कहीं भी किसी भी बंधन में क्यों नहीं हैं। पास्टर साहब, पूरी दुनिया में लोग ये शो देखते हैं और देखते भी रहेंगे। इस वक्त आप लोगों को ये बताइए कि जब आप इस हालत में थे, आप कैसा महसूस कर रहे थे, और जब यीशु मसीह ने आपके साथ ये कलाम किया तो फिर अब क्या सूरत हाल है, ये बताइए। कैसा उस वक्त मायूसी की हालत में कैसे महसूस कर रहे थे मुख्तसर तौर पर, अब जब यीशु ने कलाम किया है अब आप क्या महसूस करते हैं, ताकि दुनिया जान सके कि जब यीशु मसीह बदल देता है इंसानों की अंदरूनी और बैरूनी हालतें कैसी हो जाती हैं। इस पर बात कीजिए। सबसे पहले जब मैं इस परेशानी में था तो मेरे को लगता था कि जिंदगी खत्म हो चुकी है। मेरे आसपास थे वो सब तसल्ली दे रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन जो अंदर से आवाज आ रही थी वो शायद कुछ टेक्निकल खराबी है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो ऑडियो है उसको आप लीजिए। पास्टर साहब, मेरी दरख्वास्त होगी जी कि उस हालत में, मायूसी की हालत में, और फिर जब यीशु ने ज़िंदगी बदल दी, तो ये अब बताइए हमारी पूरी दुनिया के नाज़रीन को कि फिर वो ज़िंदगी कैसी है। जी, जब मैं प्रभु में आने से पहले जब मैं बीमार था तो वो जिंदगी बहुत बेकार जिंदगी थी। मेरे को पता नहीं होता था क्या करना है क्या नहीं करना। बीमारी के समय जब मैं बीमार था, जब मेरी आशा खत्म हो चुकी थी, लोग मेरे मुंह पे बोलते थे कि हाँ कोई बात नहीं, अब बच जाओगे। लेकिन जब मेरे से दूर 2 कदम बाहर आते थे कमरे से, तो वो आपस में बात करते थे कि ये बचेगा नहीं है, ये नहीं बचेगा, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी बीवी है, वो भी घरों का काम करेगी, अब गुजारा कैसे होगा। वो मतलब बहुत सी बातें करते थे। बहुत शुक्रिया, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। आप देख और सुन रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, और आपकी फीलिंग्स नाउमीदी पर हैं। यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी को बदला, तो अब ये बताइए 3 मिनट में अब ये जिंदगी कैसी है। अब ये जिंदगी खुशनाम जिंदगी है। प्रभु का धन्यवाद है, एक नई जिंदगी दी मेरे को। अब मेरे को मतलब वचन में इसमें लिखा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। अब प्रभु ने इतनी खुश जिंदगी दी है कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माँ बाप सब मेरे साथ है, और प्रभु का धन्यवाद है। अब ना कोई बीमारी है। जो डॉक्टरों ने बात की कि तुम ये नहीं खा सकते, तुम वो नहीं खा सकते, प्रभु का धन्यवाद है कि आज मैं वो सारी सभी चीजें खा रहा हूं और मेरे को 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन देख रहे हैं, यीशु जब कलाम करता है बीमारी की जगह शिफा आ गई,
मौत की जगह जिंदगी आ गई, बदहाली नाउमीदी की जगह हौसला और खुशहाली आ गई। पास्टर साहब, पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपको मैं 2 मिनट देता हूं, खुदा आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन अगर यही वक्त हो, 2 मिनट है आपके पास, पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस सभी को यही बताना चाहता हूं, चाहे आप प्रभु को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, चाहे आप प्रभु में हो, अगर आप ये संदेश सुन रहे हो तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं कि जैसे प्रभु ने मेरे को बचाया, अगर आप उन पर विश्वास लाओगे, उसके कलाम पे विश्वास रखोगे, तो इंशाअल्लाह प्रभु आपको भी हर एक बीमारी से मुक्त करने की ताकत रखता है। वो आपके जीवन में भी बदलाव रखने की ताकत रखता है। बस शर्त एक ही है कि आपको उसके वचन पे, उसके नाम पे विश्वास करने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया। ये भी बताइए, ये विश्वास कैसे करें, ये आप बताइए पास्टर साहब। विश्वास कैसे उसको पुकारें, कैसे पुकारें? जी, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि विश्वास आता है सुनने से। अगर कोई प्रभु का खादम, कोई प्रभु का बंदा उनको प्रभु का वचन सुना रहा है, तो उनको पूरी रीति से, पूरे मन से उस बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि सुनने से ही विश्वास बढ़ता है। बहुत शुक्रिया। तो लोगों को मसीह की बातें सुननी और पढ़नी चाहिए। अब पास्टर साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि आप दुआ फरमाइए ताकि जब ये वचन पहुंचा है लोगों तक, तो वो इसको सुनकर इस पर गौर करें और यीशु मसीह से जो बरकत, शिफा, जिंदगी मिल सकती है वो पाने के लिए उसे पुकारें। ये दुआ कीजिए, 1 मिनट आपके पास। जी, प्रार्थना करेंगे। आसमानी बाप, मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने खुदावन तेरे वचन को सुना है और जिन लोगों ने खुदावन अपने जीवन को तेरे को दिया है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो लोग आज बहुत से तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं और मानना चाहते हैं और शैतान उनके मनों को भारी किया हुआ है, मैं सारी ही दुष्ट शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को मैं प्रभु यीशु के नाम में दफा दूर करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये जो प्रचार, ये जो तुम्हारे आपका खुदा का खादम प्रचार कर रहा है, उसके सुनने के द्वारा लोगों में ईमान पैदा हो और लोग प्रभु तेरे वचन को सुनकर तेरे नजदीक आए। सारी दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पास्टर विक्रम साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने बताया कि मसीह ने जो कलाम किया उसने ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहे हैं यीशु मसीह के वसीला से कलाम खुदा मुजस्सम कलमा है, यीशु मसीह उनके वसीला से पहुंचता रहेगा। तो इस कलाम के पहुंचने से समझ मिलती है। फिर आपने खुद देखा है, सुना है, बीमारी की जगह शिफा, मौत की जगह पर जिंदगी, गुनाह और नाराज़गी की जगह पर यीशु को कबूल करने से गुनाहों की मुआफ़ी। चूँकि फ़रोज़ लगात में लिखा है यीशु मसीह गुनाहों से बचाने वाला। अगर आप भी इन मसाइल का शिकार हैं, इन बंधनों में हैं, तो यीशु मसीह आपसे भी कह रहे हैं खौफ ना कर, मैं मर गया था, जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा। वो आपको भी विज़िट करके आपकी ज़िंदगी भी इसी लम्हे, इसी घड़ी बदल सकते हैं। जो कुछ उन्होंने पास्टर साहब के लिए किया, मेरे लिए किया, आप आपके ख़ानदानों के लिए, अजीज़ों के लिए, सब के लिए कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बराह रास्त शो फजल रबी, आपका मेज़बान दानियाल।